So, a very good morning to all of you. Today, in this video, we are going to discuss about list operations. इससे पहले की वीडियो में हमने लिस्ट को बनाना सीखा था, लिस्ट को हमने कंपेयर करना सीखा था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिस्ट ऑपरेशंस. लिस्ट ऑपरेशन क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे लिस्ट ज्वाइनिंग, ठीक है, लिस्ट को, दो लिस्ट को आपस में ज्वाइन करना, आपस में जोड़ना. रेप्लिकेटिंग ए लिस्ट, ठीक है, हमने अगर इस लिस्ट में जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं उनको अगर हमें रिपीट करना है, ठीक है, रेप्लिकेट करना है, तो इन दैट केस वी विल be using asterisk operator, and then we will have slicing the list. Slicing the list means if we want to extract some element from the list, then we can use slicing the list. Okay, so discuss करते हैं. First of all, we are having joining the list. Okay, we can join list, ठीक है, we can join two list by using concatenation operator. concatenation operator हमारा क्या है, प्लस साइन. जो आप प्लस साइन यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, जो प्लस साइन आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस प्लस साइन इज यूज टू concatenate the two string. concatenate means we are going to add, we are going to join two लिस्ट, ठीक है, दो लिस्ट हैं, उनको अगर हमें ज्वाइन करना है, फॉर दैट केस, फॉर दैट पर्पज वी विल यूज दिस concatenation operator, that is plus sign. Okay, look at the example carefully. Here we are having list 1. List 1 is equal to 1. We are having 1 2 3 4 5. Okay, 5 elements are there in this list, and we are having another list, that is list 2 is equal to 6 7 8 9. So in second list we are having 4 elements. So if we join these two lists, then one is print L1 plus L2. L1 plus L2, whenever we write L1 plus L2, then it will make another list and we can print that list. ठीक है, अगर आपको ये तीसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करना है, तीसरे लिस्ट के अंदर असाइन करना है, तो आप उसको तीसरे लिस्ट के अंदर भी असाइन कर सकते हो. दैट कैन बी डन वेरी इजीली. ठीक है, अगर आपको दो लिस्ट है, एक लिस्ट 1 लिस्ट 2, और आपको फिर अगर आपको ज्वाइन करोगे और आप उसको तीसरी वो बनानी है, तीसरी लिस्ट बनानी है, तो आपको उसको किसी वेरिएबल के अंदर लेके जाना पड़ेगा. ओके फाइन. सो दिस इज हाउ we can join, we can concatenate two list. Okay, पर इसमें आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, we cannot add a number to the list. ठीक है, हम किसी लिस्ट में नंबर ऐड नहीं कर सकते. नंबर ऐड नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, here you can see print L1 plus 2. L1 plus 2, L1 के अंदर एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 5. so here we cannot add any number to our existing list. so this will give you an error message. Here it will give you an error message. यहाँ पे आपको एक error message मिलेगा. so you cannot do that. so okay fine. आइए इसको हम करके देखते हैं पाइथन के अंदर. सपोज वी आर हैविंग लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 and 5. we are having this list. okay, then we are having another list 2 is equal to 6 7 8 9. okay, then it will print L1 plus L2, L1 plus L2. okay, then we'll find the concatenated list. You can find the concatenated list. okay, is that clear? I think it is clear to you. okay, now we'll move on the next part. if we want to add any number to a list, अगर हमें कोई नंबर लिस्ट के अंदर ऐड करना है, then it will give you an error message. देखते हैं कि error message कैसे आता है. so if you want to add any number to a list, suppose list के अंदर I am adding one number, okay, and then run this program. here you will get an error. okay, you can find the error. ठीक है, type error, can only concatenate list not integer to the list.
मतलब हम लिस्ट को लिस्ट के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं, लिस्ट को लिस्ट के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम नंबर को ऐड नहीं कर सकते। ओके, देन we'll move to the next part, repeating or replicating a string. If you want to repeat, if you want to repeat a string, ठीक है, in the list, if you want to repeat a list or if you want to replicate a string by using asterisk operator, ठीक है, अगर हमें कुछ asterisk operator के साथ हमें उसको रिपीट करना है, रेप्लिकेट करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारी लिस्ट है, दिस और लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स इसके अंदर है, एंड इफ यू राइट प्रिंट L1 into 3, if you write L1 into 3, then it will give you the output like this, 1 2 3 4 5. Okay, then another 1 2 3 4 5, then third 1 2 3 4 5. So it is replicating the string, it is repeating the string. Okay, so but इसमें ये आप खास ध्यान रखेंगे, you can perform only multiplication, you cannot add, you cannot subtract, you cannot divide. Okay, so only you can replicate with the help of asterisk operator. asterisk operator से आप केवल उसको replicate कर सकते हो, you cannot add, you cannot subtract, you cannot divide a list with a number. Okay, so let's do this. So here we have seen we cannot add, add any number to list, but we can concatenate, it like this. Okay, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. If we'll write 3 here, then it will come 3 times. You can see 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. If we'll add, multiply 4 times, then it will give you 4 times. Okay, you can see 1 2 3 4 5, then again 1 2 3 4 5, then again 1 2 3 4 5, and then again 1 2 3 4 5. I think it is clear to you. So this is how we can replicate a list or we can replicate a string also. String को भी हम replicate कर सकते हैं with the help of this asterisk operator. Okay, then the very important portion, slicing the list. ठीक है, लिस्ट को स्लाइस कैसे करना है? स्लाइसिंग द लिस्ट मीन्स एक्सट्रैक्टिंग ए सब पार्ट ऑफ द लिस्ट, यानी हमारी लिस्ट है, एक बहुत बड़ी हमारी लिस्ट है, उसमें से हमें कुछ पार्ट, बड़ी ध्यान रखना, जब भी जो भी आप पार्ट निकालोगे उसके अंदर से वो पार्ट आपके कंसेक्यूटिव आइटम्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपकी सेग्रीगेटेड एलिमेंट्स आप निकालो, अलग अलग पोजिशन से एलिमेंट निकालो, ऐसा नहीं कर सकते आप एक साथ कहीं पे जो एक ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है, अगर आप वो निकालना चाहते हो, वो आप बाहर निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट कर सकते हो विद you can do it by using slicing. We use list index, ठीक है, to create list slice as follows. ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करके हम लोग लिस्ट की स्लाइस निकाल सकते हैं। इफ यू वांट टू रिमूव द, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द लिस्ट, then we have to use index number of the items. ठीक है, so let's do this. Slice is equal to list name, here we are having list name, and here we'll write the starting position, ठीक है, then colon and then stop position. कहाँ से हमें स्टार्ट करनी है लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना, कहाँ से हमें स्लाइसिंग लेनी है और कहाँ तक हमें लेनी है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर आपको एक खास ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपकी अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। तो जैसे हमने लिया है यहाँ पे, यू कैन सी दिस एग्जांपल, L1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 elements in the list and the index number of first element is 0, then 1, then 2, then 3 and up to 9. The index number is up to 9, ठीक है, 0 to 9. There are 10 elements and index number of first element is 0, so the index number of last element will be 9.
Fine. So now we are going to extract the list. S is equal to L1 to 5. S is equal to L1 to 5. So 2 क्या है? 2 ओवर स्टार्टिंग पोजिशन यानी कि ये हो गया हमारा 0 1 2, ये हमारा स्टार्टिंग पोजिशन हो गया इसका. ओके, हमने इसको बोल्ड कर दिया स्टार्टिंग पोजिशन. और कहाँ तक जाएगा? 2 से लेके 5 तक. अब 5 क्या है? हमारी स्टॉप वैल्यू है, यानी कि अपर लिमिट है. अपर लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं होती है. तो यहाँ पे 2 3 and 4. 2 3 and 4. So these three elements will be extracted. 5 वाली पोजीशन एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि जब हम स्लाइसिंग करते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग करते हैं, तो उसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है. वी नेवर इंक्लूड अपर लिमिट. सो हियर वी विल गेट 3 4 5 एज एन आउटपुट. यहाँ पे हमें 3 4 5 एज एन आउटपुट मिलेगा. ठीक है. एलिमेंट्स विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 to 4. ये हमने यहाँ पे लिखा भी है कि एलिमेंट्स विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 to 4. 2 to 4 से ही हम लोग क्या करते हैं, जो इंडेक्स नंबर है 2 to 4 हमने लिखा 2 to 5 है. यू कैन सी वी हैव रिटन 2 to 5. ठीक है. बट इट इज एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम 2 to 4 बिकॉज द अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड. यहाँ पे अपर लिमिट जो होती है वो हमारी इंक्लूड नहीं होती है. सो दैट्स व्हाई इट हैज गिवन द आउटपुट 3 4 and 5. सो 2 3 and 4, index number 2 3 and 4. Fine. Okay, then we are having few questions. L is equal to 10 12 14 20 22 24 30. This is our list. ठीक है. Here if you want to extract the list L 4 to 10, तो 4 to 10 0 1 2 3, ये तो हमारा नहीं निकलेगा. 4 to 10 यानी कि ये हमारी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी. 4 to 10 ऑल द वैल्यूज विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर. ओके, देन इसको चलो करके देखते हैं. कॉपी कर लेते हैं इसको पाइथन में करके देखते हैं. Here you can see हटाते हैं इसको. Then we'll write print. Here we need to write print. रन करते हैं इसको. So we'll get 22 24 30 32 and 34. These all value will get as an output because the index number of 22 is 4. ठीक है. 4 then 5 then 6 then 7 and then 8. okay, राइट. हमने यहाँ पे 10 लिया है. ठीक है. तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा. अब 9th इंडेक्स नंबर हमारे पास है नहीं, तो इट विल नॉट गिव यू एन एरर मैसेज. ये आपको एरर मैसेज नहीं देगा. ठीक है. इट विल नॉट गिव यू एरर मैसेज. एंड ये 4 से लेके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके सारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देगा. ओके, नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल. यहाँ हियर वी हैव यूज्ड माइन नेगेटिव इंडेक्स नंबर्स. ओके, यहाँ ऊपर हमने पॉजिटिव इंडेक्स नंबर्स यूज किए थे, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव इंडेक्स नंबर. नेगेटिव इंडेक्स नंबर क्या होगा? ये होगा हमारा -1 -2. तो -2 -3 -4 और -5. स्टार्टिंग कहाँ से होगी? -5 से स्टार्ट होगा. तो यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है. देन -2. ओके, देन दिस इज हाउ. ओके, इसको करके देखते हैं कि क्या ये सच में रिजल्ट यही आएगा या नहीं आएगा. ध्यान रखना हमने यहाँ पे स्टेप मेंशन नहीं किया है. ओके, प्रिंट रन करते हैं इसको. Here we'll get 22 24 and 30. So -5 -3 -4 -3 and this is -2. Sorry,
-5, -4 एंड -3। दिस पोजीशन इज -2 एंड हमने अभी डिस्कस किया था कि -2 में क्या होगा, -2 में -2 is our upper limit, so this will not be included. So here -2 will not be included in the list. Fine. Okay, then we'll be doing third example. Here the starting position is this, ending position is 7, it means 6 index number, and step value is 2. So we'll get the data 12, 24 and 12, 20 and 24. कैसे आया 12, 20? ये देखो, ये 1 है, स्टार्टिंग पोजीशन 1 है, this is 7, 7 means up to 6. Okay, because upper limit is not included, so 1 to 6, step 2. So this is 0 index number, this is 1 index number, this is 2. 2 will be skipped. First index number is 1, then 3 and then 5. So this is how it will extract the values from the list. ठीक है, अगर हमें list slices निकालनी है तो we can extract the values like this using steps. Okay, then we have another example, 1 to 8, it will go 1 to 7. Okay, 1 to 7 is step 2. So 1, 3, 5 and 7, these 4 elements will be extracted. Okay, 1, 3, 5 and 7, these 4 elements will be extracted from this list. Okay, now we are having another example. When we are not putting any value, by default it will start with 0. ठीक है ना, it will start with 0. So here this is 0 and upper limit we have not mentioned, so it will go up to last, and step is 2, so it will extract the data 10, 14, 22, 30, okay and 34. ओके, क्योंकि हमने इसमें अपर लिमिट मेंशन नहीं की है, अपर लिमिट मेंशन नहीं की है, तो ये इट विल गो टू लास्ट मिनट. इसको करके देखते हैं. So here you will get the data 10, 14, then 22, sorry, then 30 and then 34. So if we are not mentioning the upper limit, it will extract the data, it will slice the data up to the last element. Okay, then now we are having few questions for you. Write a program, you have to try this program. Write a program that extract a list slice from a given list of numbers, जो अब तक हम करके आए हैं. Display each element of the list slice and also print the sum of them. ठीक है, आपको पहले लिस्ट स्लाइस निकालना है. ठीक है, लिस्ट स्लाइस निकालना है. ठीक है, एंड देन यू हैव टू प्रिंट द सम. आपको उन आइटम का सम भी निकालना है. ठीक है, आपने लिस्ट स्लाइसेस कर दी और उनका आपको सम निकालना है. सम निकालना मैंने आपको बता दिया था कि आपको सम कैसे निकालना होता है. ठीक है ना, पहले आप लिस्ट स्लाइस बनाओ, लिस्ट स्लाइस बनाने के बाद यू हैव टू फाइंड द सम. ओके, देन write a program
that extraction list slice from a given list of number, ठीक है, display each element of the list slice and also print the average of them, उनका एवरेज आपको निकालना है, जो आपने लिस्ट स्लाइस बनाई है उनका आपको एवरेज भी निकालना है, ओके, ठीक है, ये आपको दोनों प्रोग्राम करके देखने हैं, राइट। देन वी आर हैविंग यूजिंग लिस्ट स्लाइसेस फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है, हम लिस्ट स्लाइसेस का यूज कर रहे हैं लिस्ट में मॉडिफिकेशन करने के लिए। अगर हमारी कोई लिस्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट है और उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं एंड हमें उसमें 3-4 आइटम इंसर्ट करने हैं या 3-4 आइटम रिप्लेस करने हैं, तो वी कैन यूज लिस्ट स्लाइसेस लाइक दिस। यू कैन सी दिस एग्जांपल नंबर 1, L is equal to 1 2 3 4, ठीक है, there are 4 elements in the list and here we are writing L 0 2 0 1, तो यहाँ पे अपर लिमिट विल नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे इसका एक्चुअली क्या मीनिंग हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा इसका एक्चुअली मीनिंग। और जो ये जो हमारी जो वैल्यू है, जो जो इंडेक्स 0 इंडेक्स नंबर पे है और जो हमारी 1 इंडेक्स नंबर पे है, ये जो हमारी दो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। So you can see if we'll do this like this, here if we'll print the list then we'll get 0 1 in place of 1 or 2, ठीक है ना, then 3 and 4, okay। Example number 2, look at the example number 2, here in example number 2 again 1 2 3 4 same list है, here we are writing 0 2 यानी कि इंडेक्स नंबर 0 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 की बात कर रहे हैं, बिकॉज 2 अपर लिमिट है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ओके। सो 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 के स्पेस पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वहां पे दो एलिमेंट्स है 1 और 2, अब उन दोनों एलिमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, विल गेट 1 ए हियर, ओके, हमें यहाँ पे ए मिल जाएगा, फाइन। देन वी आर हैविंग एग्जांपल 3, 1 2 3 4 सेम लिस्ट है हमारी एंड हेयर वी आर राइटिंग 2, स्टार्टिंग पोजीशन इज 2 बट वी हैव नॉट मेंशन द एंडिंग पोजीशन, तो ये कहाँ तक जाएगा, अप टू लास्ट तक इट विल मूव एंड देन हेयर वी आर राइटिंग ए बी सी, हम ए बी सी इसके अंदर लिख रहे हैं, तो क्या होगा 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद जो हमारी 2 इंडेक्स नंबर है, 2 इंडेक्स नंबर यानी कि 0 इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर एंड यहाँ पे हमारा 2 इंडेक्स नंबर है, तो 2 इंडेक्स नंबर से लेके बाद में हमारे सारे एलिमेंट ये ऐड हो जाएंगे, तो इट विल गिव यू आउटपुट 1 2 एंड देन ए बी एंड सी, okay। So this is how it will create the list, or we are using list slices to update an existing list. I hope it is clear to you. I hope it is clear to you. So in our next video we will discuss about updating elements of a list and deleting elements from a list, so that will be that portion we will cover in our next video. So that's all for this video. Thank you very much. God bless you all.